Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farooq, your course instructor for GIS and remote sensing. Now we are entering in the third week of this semester, and in the previous 2 weeks, we have talked about the basics of GIS, its basic definition, its basic components, and the application in earth sciences and engineering. And then we talked about remote sensing, its basic principle and the types of remote sensing, the platforms those are available to perform remote sensing. And then we talked about the applications of remote sensing in earth science and engineering field. And after that, we talked about maps, how we can define a map and what is the purpose of map, what are the different types of maps, and the scale of the map, resolution of the map. And then we talked about the importance of maps with respect to GIS. And definitely we know that how the maps are prepared, and how we can represent different type of objects on the map. And the most important thing is the georeferencing. We talked about what is georeferencing and how we do the georeferencing of different maps, and what are the different type of georeferencing systems available in the world. And definitely the most common is the longitude and latitude system. And then we talked about how these georeferencing systems are created. Definitely those are based on some sort of datums. And whenever we are going to georeference an object, we need to actually have its vertical control, and we need to have its horizontal control. And for that we need to have some sort of datums, and we already know that what are the origin of datums. For I mean the vertical datum and horizontal datum, we have geoid and ellipsoid model. We talked about that. We talked about the shape of the earth, and then we talked about the different type of projection system. Those are available to convert the 3D or spheroidal earth surface to a 2D surface of a map. So there are different projection systems available. Some of them are normal projections, some of them are the other type of projections. Those are inverse projections, you can say. So these type of things we talked about in the previous lecture, and in this lecture we are going to talk about how we can acquire the data that is used for the mapping in GIS. So the data can be acquired by different techniques, and definitely we are going to talk about the data that is actually spatial in form. In spatial mean we should have its coordinates, and we should have its location where geographically that point is located on the map. So we need to have a spatial data that is going to be worked for GIS applications. So, and why we require the spatial data? Because we want to show the real world on the map. And definitely the real world is very complicated. There are complex features those are available in the real world. So the most important thing is we need to define the objective of the map. What type of information we are going to present on a map, because there are number of information in the real world that is available. So we need to define what type of information is being transformed into a map from real world. So the data acquisition is very important. Definitely in the maps those are prepared in GIS are a kind of best approximation of the features those are available in the real world. So we really need to define the purpose of mapping. And definitely there are different ways to acquire the data related to the real world. So there are different methods like in situ thematic data collection, like we collect the data related to climate and air quality stations, water sampling stations, species mapping, soil mapping, georeferencing is actually done through GPS when we acquire this type of data.
So these are the different examples through which we can acquire the thematic data based on the ground measurements. Then we have land surveying, that is specially used to prepare the topographic maps. And then we have photogrammetry and remote sensing, that is done to acquire different type of data related to the environment of the earth, and which is the basic entity to process in the GIS environment. So if you're talking about the land surveying, you already familiar with land surveying, like in the previous semester you have studied this subject, surveying, and we already know that how to prepare the topographic maps based on the given conditions by using the different instruments. So we use planar coordinates to prepare our topographic sheets. So we already know that there are some linear measurements, and there are some triangular measurements. Those we do by using the basic rules of surveying. So we already know what is triangulation. It means when we have two angles and one side known, then we can fix the location of different points by using the triangulation method for horizontal control. Then there is another method that is called as traversing. So you already know what is traversing. So when we one distance and one angle is known, then another terminology is offset. It means when we have two distances and a right angle known. And there is another terminology that is called as triliteration. So when we have two distances of two sides, so we can perform these kind of steps to establish the horizontal control for the different objects, or the entities in entities. Those are, required to be mapped on the map, and their position need to be fixed. Then we have elevation data, and definitely we perform differential leveling for having the elevation data. And then we have geodetic surveying. Surveying is done on regional basis, on bigger areas, and we in this way we establish the control points at country level. And nowadays we have electronic distance measurement instruments. Those are pretty much fast, and record the we can record the distances and angles at the same time by using the total stations. So these are the surveying instruments. Those are now used, and those have replaced the conventional theodolites and levels and plane tables. Those are actually the basic equipments used from many decades for surveying purposes. All right, so this is how we can acquire the data related to land survey. Similarly, we have another type of data acquisition for GIS, that is called as photogrammetry and remote sensing. So photogrammetry is a kind of art that is used to take the photographs of the earth environment, from the air. So there are airborne surveys. Those are performed for the photogrammetry, and also to perform the remote sensing activities from the air. So photogrammetry is one of them, and then photogrammetry is done like in vertical mode, in oblique mode, and in this way we can also prepare the stereoscopic view of different objects, especially the mountainous area. We can have a stereoscopic view of the area. That is a kind of 3D view that is done by, if we do the photogrammetry in different of the same area from different positions in the air. इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज एक आपने वर्टिकल फोटोग्राफ ली है, जब आपका जो प्लेन है बिल्कुल अबव है, वर्टिकली अबव है, जो आपकी नीचे एरिया है जिसके आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप एक राइट साइड से लेंगे, एक लेफ्ट साइड से इमेज लेंगे सेम एरिया का,
तो इस तरीके से जब आप इन इमेजेस को आपस में मिलाते हैं तो वो स्टीरियोस्कोपिक व्यू बन जाता है, एक मर्ज्ड इमेज बन जाता है जिसमें 3D लुक जो है वो आ जाती है। और इस तरीके से आप जो है वो विजुअली जो है वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एलिवेशन जो उसकी डिफरेंस है वो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एयरबॉर्न सर्विस में रिमोट सेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड बेस्ड रिमोट सेंसर्स होते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसर्स होते हैं। तो एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग जो है वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें सेंसर्स भी लेके आ सकते हैं, लाइडार सर्वेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी जो होती है उसमें आप डिफरेंट सैटेलाइट जो होते हैं वो आप उसको यूज़ करके तो उसके ऊपर सेंसर्स को माउंट कर देते हैं। जब वो सेंसर्स जो है वो क्या कहते हैं उसे रिमोट सेंसिंग करते हैं डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंट की, तो वो जो डेटा है वो फिर आप रिट्रीव करते हैं वहाँ से। और ग्राउंड बेस्ड जो आपके पास जो स्टेशन होते हैं जैसे नासा जो है वो कंट्रोल टावर्स जो होते हैं वहाँ पे वो डेटा आपका आता है और वहाँ से फिर आप क्या करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो एक्वायर करते हैं, लाइक लैंडसैट दैट इज वेरी ओल्ड सिस्टम दैट वाज स्टार्टेड इन 1972। उसके बाद स्पॉट है वो सैटेलाइट है आपके पास। फिर AVHR एडवांस्ड वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर, इसकी रेजोल्यूशन 1 किलोमीटर है। उसके बाद टेरा आई मीन मॉडिस जो है 500 मीटर रेजोल्यूशन है। इसके अलावा आपके पास एस्टर है जिससे आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाते हैं और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 30 मीटर है। ये स्पेशियल रेजोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डाटा है ज़मीन के ऊपर वो एक बॉक्स की फॉर्म में या सेल्स की फॉर्म में या ग्रिड्स की फॉर्म में एक्वायर होता है। तो ग्राउंड के ऊपर 30 बाय 30 मीटर का अगर एक जो सेल है उसकी इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंसर की रेजोल्यूशन है 30 मीटर। अगर 1 बाय 1 किलोमीटर की होती है तो उसका मतलब क्या है कि सेंसर की रेजोल्यूशन है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पेशियल रेजोल्यूशन जो है वो सेंसर की डिफाइन करती है कि कौन सा डाटा कितना रिफाइंड है और उसकी उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, राइट। तो इससे इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे जब मिड टर्म के बाद हम रिमोट सेंसिंग वाला पोर्शन जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो रेजोल्यूशन होती है डिफरेंट सेंसर्स की उसका क्या मतलब है और किस सेंसर की कितनी रेजोल्यूशन है और वो रेजोल्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म के बाद। इस तरह से रेडार ग्रामेट्री है, ये भी एयरबॉर्न भी होती है और सैटेलाइट बेस्ड भी होती है कि रेडार जो है वो एक्टिव रिमोट सेंसर है। एक्टिव रिमोट सेंसर्स कौन से होते हैं जो खुद सोर्स भी होते हैं एनर्जी का और उसको वो जब वो एनर्जी एमिट करते हैं फिर वो स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर और दोबारा स्ट्राइक करके वापस उसी सेंसर के पास आती है तो वो उसको जो है वो रिकॉर्ड भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिव रिमोट सेंसर्स होते हैं। एक होते हैं पैसिव रिमोट सेंसर्स। पैसिव रिमोट सेंसर्स जो होते हैं उसमें जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन होता है। ठीक हो गया। Similarly, there are other satellite sensors like interferometric synthetic aperture radar जो कि जिसको INSAR कहते हैं। तो ये रेडार की ही एक फॉर्म है लेकिन इसमें जो डाटा जो आप एक्वायर करते हैं दैट इज अ रियली हाई क्वालिटी। उसके बाद लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लाइडार है, इस तरह से इससे भी आप डाटा एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि there are different way outs to acquire the data that is used for GIS purposes। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड बेस या इन सिचु डाटा कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके बाद हमने लैंड सर्वेइंग के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद एयरबोर्न और रिमोट सेंसिंग को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वे आउट्स हैं जो कि यूज होते हैं जो डाटा आप GIS पर्पजेस के लिए यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। ऑल राइट, सो यू सी दैट कि एरियल फोटोग्राफी या फोटोग्रामेट्री में होता क्या है कि ये प्लेन जो है वो इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, और इस तरीके से वो जो है वो डाटा आपका नीचे एक्वायर होता है। ठीक है, ये फ्लाइट डायरेक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा जब एक्वायर हो रहा है तो वो एक ही जगह पे फिर ये भी होता है कि ओवरलैपिंग भी होती है।
ये नहीं होता है कि एक जगह पे फोटो ले ली है उसके बाद दूसरी फोटो उससे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर होगी, इसका नहीं होता। बल्कि कुछ आपकी फोटोज ओवरलैप हो जाती है। जैसे ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो फोटोज हैं वो ओवरलैप हो रही है। ये देखें, ये इतनी इतनी फोटोज हैं वो ओवरलैप हो रही है। इट मीन्स के कोई भी डाटा होल या गैप जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो समटाइम्स जो ओवरलैपिंग है वो 60% तक भी होती है। ठीक है, समटाइम जो ओवरलैपिंग है वो आपकी 60% तक भी फोटोज में होती है। ठीक है, या आप जो रिमोट सेंसिंग से जो डाटा लेते हैं उसके अंदर ये इस तरह से जो ओवरलैपिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी कैन अवॉइड एनी नो डाटा पॉइंट्स और एनी gaps in the satellite imagery or in the airborne imagery. So दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अगर आप रिमोट सेंसर यूज करें एयरबोर्न सर्विस के अंदर, तो उसमें जैसे लेजर है, जैसे ये लेजर लाइडार जो है सेंसर, इट्स अ काइंड ऑफ लेजर स्कैनर कि कोहेरेंट एक लाइट की जो बीम है वो सेंड की जाती है और वो इस तरह से अर्थ के ऊपर ये स्ट्राइक करती है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो डेटा पॉइंट्स हैं उससे मतलब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे ये ट्री है तो ट्री के ऊपर वाली सरफेस के ऊपर भी लेजर स्ट्राइक करेगा, घर के ऊपर भी स्ट्राइक करेगा, तो डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा और वो जो इन्फॉर्मेशन वापस सेंसर की तरफ जाएगी, स्ट्राइक बैक करेगी, रिफ्लेक्ट होके लेजर बीम। तो वो फिर क्या होगा कि इस तरह से आप स्कैनिंग कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगा जिसमें हर पॉइंट की एक वैल्यू होगी। ये जो जितने पॉइंट्स ये वापस जाते हैं ये एक्चुअली दीज आर कॉल्ड डिजिटल नंबर्स और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ही ये रिफ्लेक्टेंस होती है तो वो वापस मेजर होती है, तो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, तो इसलिए उनका जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है वो यूनिक होता है। तो ये आपके पास ये डाटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं सरफेस के ऊपर इस तरह से डिफरेंट सेंसर्स की डिफरेंट रेजोल्यूशन होती है। वो रेजोल्यूशन की बेस के ऊपर डाटा की क्वालिटी जो है वो डिफाइन होती है। तो जैसे कि ये अगर आप लाइडार को यूज कर रहे हैं तो ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना 0.3 मीटर का आपके पास समझ लेंगे यहाँ पे एक सेल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे 0.3 मीटर का एक सेल क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर से डाटा का वो एक रीडिंग होगी, उसके बाद दूसरी रीडिंग होगी। इस तरह से ये जो है वो 0.3 मीटर के हिसाब से एक पॉइंट, लेट्स सपोज ये 1/1 किलोमीटर का एरिया, तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ पॉइंट्स होंगे, बल्कि बिलियंस ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि रिकॉर्ड होंगे डाटा पॉइंट की फॉर्म में, और हर पॉइंट जो है उसकी अपनी एक आईडी होगी जिसे डिजिटल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो है ऑर्थो फोटोग्राफी, आपकी जो वर्टिकल फोटोग्राफी है, ये 0.15 मीटर रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो इस तरह से फीचर्स आपको नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पिक्सल साइज है यहाँ पे छोटे से छोटा साइज जो पिक्चर एलिमेंट का जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है उसकी डायमेंशन है 0.1/115 बाई 0.15 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हर सेंसर की अपनी एक स्पेशियल रेजोल्यूशन होती है, कुछ की रेजोल्यूशन ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो anyhow this is one of the method that is used for data acquisition based on airborne remote sensing. सिमिलरली एयरबॉर्न फोटोग्राफी भी होती है। फोटोग्राफ जब आप लेते हैं तो फोटोग्राफ सिंपल, क्योंकि एरियल फोटोग्राफ्स में ये ट्रेडिशनली 1920 से 30 से 40 से ये स्टार्ट हुआ काम के एयरबॉर्न सर्वेस किए जाते थे और वहाँ से फिर क्या था कि ओवरऑल जो आपका जो एक व्यू है फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द एयर जो है वो डिफरेंट एरियाज के लिए जाते थे और उसमें उस फोटोग्राफ्स को यूज़ किया जाता था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, हैजर्ड मैपिंग के लिए भी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक लैंडस्लाइड है, उसकी बाउंड्री जो है वो यहाँ पे उन्होंने मार्क की है। तो ये एक्चुअली विजुअल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है उसके थ्रू आप डिफरेंट हैजर्ड्स को जो है वो आप मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसमें आप रिवर्स की बाउंड्रीज को मैप कर सकते हैं, इसमें आप लैंडस्लाइड्स को मैप कर सकते हैं, स्लो फेलियर्स को देख सकते हैं, फॉरेस्ट जो है उनकी जो बाउंड्रीज को मैप कर सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दोज कुड बी डन विजुअली बाय लुकिंग एट द एरियल फोटोग्राफ्स।
these are some of the random clicks those I did when I was traveling from St. Louis to Chicago. तो उस वक्त मैंने कुछ रैंडम फोटोज ली थी एयर से। सो एरियल फोटोग्राफी भी यही, फोटोग्रामेट्री भी यही चीज़ है कि आप जो है वो एयरबोर्न जो इक्विपमेंट है या जो एक प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके आप ज़मीन की जो है वो फोटोग्राफी करें, ग्राउंड की जो है फोटोग्राफी करें। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वे, ये तो ऐसे ही जेनेरिक फोटोज ली हैं मतलब वहाँ से। लेकिन जो आप एरियल फोटोग्राफी करते हैं उसमें जो आपका कैमरा होता है वो बॉटम ऑफ द प्लेन पे माउंट होता है और वो हाई रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उसके जरिए आप नीचे से जो है वो फोटोज लेते हैं, साइड की फोटो भी ले लेते हैं आप, बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउन उसकी उस एरिया की फोटो लेते हैं। उसके बाद ये कि राइट एंड लेफ्ट इस तरह से वो आप फोटोग्राफी करते हैं और उसमें जो आपका कैमरा जो होता है वो माउंट होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जैसा आपने शेयर किया है कि किस तरह से आपकी जो अर्थ जो है वो जब ऊपर से आप देखते हैं किस तरीके से जो है वो नज़र आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लॉट्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, वो इस तरीके से आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये आप विजुअली देख सकते हैं। और रिवर जो है वो इसलिए मिसूरी रिवर है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है। All right. Similarly, we have another type of data acquisition that is called as satellite based, और सिमिलर जो सिमिलर टाइप के जो रिमोट सेंसर्स हैं जो आप एयरबोर्न में भी यूज़ करते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट्स के अंदर भी। और सैटेलाइट्स आपको पता है कि स्पेस के अंदर इवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। तो वो जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें डिफरेंट सेंसर्स आप ऑन बोर्ड कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेंसर उसके अंदर ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड होते हैं। वो जो सेंसर्स होते हैं वो एक्चुअली कैमराज ही होते हैं, वो स्कैनर्स ही होते हैं जो अर्थ को स्कैन करते हैं। तो कुछ स्कैनर्स ऐसे होते हैं जो कि ना अर्थ का डिजिटल जो एलिवेशन जो डिफरेंस है उसको मेजर करते हैं। उससे पूरे ग्लोब का डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसा कि सर्टम है, ये जो सर्टम जो है ये रेडार बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस के ऊपर आपने पूरी अर्थ का जो है वो मॉडल जो है वो बना लिया और इसकी रेजोल्यूशन है 90 मीटर। इसी तरह से एस्टर भी एक सेंसर है जिससे डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो अर्थ का क्रिएट किया गया है और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 30 मीटर एस्टर, ठीक है। सिमिलरली इससे बेहतर रेजोल्यूशन के एलिवेशन मॉडल भी अर्थ के अवेलेबल हैं, जैसे कि पल्सार। पल्सार जो है ये भी फ्रीली अवेलेबल डाटा है, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 12.5 मीटर है। सिमिलरली वी हैव लाइडर बेस्ड डिजिटल एलिवेशन मॉडल जिसमें रेजोल्यूशन जो है वो है अप टू सेंटीमीटर्स। उसकी रेजोल्यूशन अप टू सेंटीमीटर्स है। यू कैन इमेजिन कि सेंटीमीटर्स तक का एक पिक्सल है वहां पे एलिवेशन में। जो 1 बाय 1 सेंटीमीटर की डायमेंशन का एक सेल जो है अर्थ का जो है उसकी जो एलिवेशन है उसको भी नोट करता है लाइडार जो है, ठीक है। दैट इज वेरी पावरफुल टूल और उसका जो डाटा है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो उस तरह का जो डाटा है उसको यूज करते हैं ग्राउंड डेफर्मेशन के लिए, ठीक है। जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग एक्टिविटी ज्यादा है और स्लोप्स जो हैं वो एक्टिवली मूव कर रही हैं तो वहाँ पे जो डेफर्मेशन है उसको नोट करने के लिए आपको हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स का डाटा चाहिए होता है। इसलिए ग्लेशियर एक्टिविटी है, ग्लेशियर्स की रिट्रीशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी आप इस तरह से लाइडर बेस्ड जो डाटा है वो यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली लैंड सैट जो है वो ओल्डेस्ट वे है। मतलब लैंड सैट जो है ये जो सैटेलाइट है इसमें भी इसके थ्रू भी रिमोट सेंसिंग जो है वो इन्वायरमेंट की जा रही है, मतलब की जा रही है। और ये 1972 में ये जो अमेरिका ने इसको शुरू किया था नासा के थ्रू। और सैटेलाइट्स इसके कई वर्जन आ चुके हुए हैं। अब भी लैंड सैट 1 2 3 4 अप टू लैंड सैट जो है ना वो 8 तक जो है वो ये जो इसके डिफरेंट मॉडल्स और वर्जन अवेलेबल है। और इसमें से कुछ जो सैटेलाइट्स हैं वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया हुआ है, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो इससे लैंड साइड से जो आपका जो डिफरेंट लैंड यूज है अर्थ का, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे आपका जो है वो क्या कहते हैं उसे आबादी है, कहाँ पे पॉपुलेशन है, कहाँ पे बैरन लैंड है। तो इस तरह से लैंड
जो आपका जो लैंड यूज है उससे रिलेटेड, या जो लैंड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फॉरेस्ट किस टाइप के हैं, माउंट ओडिशा का जो इन्वायरमेंट है, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अब लैंड सेट के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। सिमिलरली लैंड सेट जो है वो, इसके अलावा और भी डिफरेंट रिमोट सेंसर्स हैं जो यूज होते हैं अर्थ की रिमोट सेंसिंग में। और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो थर्मल प्रॉपर्टीज को देख ले रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रेनफॉल को मेजर कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इस तरह से डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स जो हैं आपके अर्थ के उस और इन्वायरमेंट के, उसको वो असेस कर रहे होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ रिमोट सेंसर्स अवेलेबल, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So this is another depiction of the remote sensing activity. Spot जो है वो एक remote sensor है, तो उसकी ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है कि आपके पास सैटेलाइट बेस्ड इनके जो सेंसर है वो किस तरीके से डाटा को एक्वायर करता है। तो ये इस तरह से अर्थ के अराउंड जो है वो इस तरीके से मूव करते हैं, ये देखिए। तो ग्लोब के अराउंड पूरी जब इनकी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, ये इस तरह से, तो फिर दोबारा ये इस तरफ से दोबारा आ जाते हैं, पूरा एक राउंड ट्रिप हो जाता है। उसके बाद उसके साथ वाली जो स्ट्रिप है उसको मैप करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फिर ओवरलैपिंग होती है कि आप जैसे कि एयरबोर्न में आप ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरह से ये जो पूरे अर्थ के अराउंड एक स्ट्रिप की फॉर्म में एक चक्कर पूरा होता है सैटेलाइट का, फिर उसके बाद जो दूसरा चक्कर होता है उसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद जो है वो दूसरी स्ट्रिप कंप्लीट होती है, और इस तरह से पूरी की पूरी अर्थ जो है वो स्कैन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि गिवन है कि जैसे ये स्पॉट जो है इसकी टोटल जो विड्थ है वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, जो एक स्ट्रिप है एट अ टाइम 60 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है वो अर्थ की, वो एट अ टाइम ये स्कैन करता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके और दूसरी स्ट्रिप जो ओवरलैप करती है उसके दरमियान में 3 किलोमीटर का ओवरलैप आता है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है कि 3 किलोमीटर का जो है वो ओवरलैप जो है वो आता है। इस तरह से टोटल जो रिकॉर्डिंग होती है दो राउंड ट्रिप में 117 किलोमीटर बन जाती है। इसी तरह से तीसरा राउंड ट्रिप होगा, चौथा राउंड ट्रिप होगा, और इस तरीके से जो है वो पूरी की पूरी जो आपकी अर्थ है वो स्कैन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो डाटा आपका जो एक्वायर होता है उसमें वो जो है वो उसमें बिल्कुल आपका जो सैटेलाइट अगर बिल्कुल वर्टिकली अबव है किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसको कहते हैं नेडर डाटा। नेडर डाटा कलेक्शन के जो बिल्कुल आपका सैटेलाइट है उसके नीचे जो अगर आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये एक आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रिप आ जाएगी, ये इमेज आ जाएगी। एक इमेज है, फिर उसके बाद दूसरा इमेज है, फिर ये तीसरा इमेज है, इस तरीके से ये डाटा एक्विजिशन जो है वो होती है। ठीक है, तो अगर आपका सैटेलाइट बिल्कुल नीचे वर्टिकली अबव है जिस पॉइंट के ऊपर, वहां की इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो उसे कहते हैं नेडर डाटा कलेक्शन। क्या कहते हैं? नेडर डाटा कलेक्शन। अगर वो डाटा, अगर बाद दफा सैटेलाइट ऐसे होते हैं कि वो साइड से डाटा ले रहे होते हैं, जैसे ये आपके पास जो है ना वो ये उसकी ये क्या कहते हैं उसे, जो जो आपका सैटेलाइट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये उसकी ये क्या कहते हैं उसे, उसका ऑर्बिट है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल ऑर्बिट के ऊपर वो डाटा कलेक्शन कर रहा है, जिसे कहेंगे नेडर डाटा कलेक्शन। अगर वो साइड से डाटा कलेक्ट कर रहा है या साइड से इमेजरी ले रहा है, तो उसे कहेंगे ऑफ नेडर डाटा कलेक्शन। तो ये ऑफ नेटेड जो डाटा कलेक्शन होते हैं वो राइट की तरफ भी हो सकते हैं, वो लेफ्ट की तरफ भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप, ये डाटा क्यों कुछ सेंसर्स क्यों वर्टिकली जो है वो बिल्कुल अपने जो बिलो जो ग्राउंड होता है उसको क्यों एक्वायर करते हैं, कोई साइड पे क्यों करते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इंशाल्लाह वो हम मिड टर्म के बाद देखेंगे कि कौन कौन से सैटेलाइट्स ऐसे हैं और वो क्यों इस मोड में डाटा जो है वो एक्वायर करते हैं। राइट, सो रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही जो डाटा है वो एक ही जो जगह है उसको डिफरेंट सेंसर जब उसको स्कैन करेंगे तो उनमें रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी। जैसे कि आपके कैमराज होते हैं, कुछ मोबाइल्स ऐसे होते हैं कि जो जिनकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती, तो एक ही जगह की पिक्चर जब वो लेंगे तो वो थोड़ी ब्लर आएगी, दूसरा उससे बेहतर वाला सेंसर जो है वो उससे बेहतर फोटो लेगा, उसके बाद जो उससे बेहतर कैमरा है वो बिल्कुल अगर आप उसको जूम करेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स भी वो आपको नजर आएंगी उसके अंदर। इट मीन्स कि जो रेजोल्यूशन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेजोल्यूशन में वो जो पिक्सल साइज है जो आपका पिक्सल साइज है वो डिफाइन करता है कि किस सेंसर की कितनी रेजोल्यूशन है। तो जितना पिक्सल साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा अच्छी आप फोटोग्राफी करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें कि
जो अगर आप सैटेलाइट बेस्ड जो आपके पास जो डाटा एक्विजिशन है, अगर उसमें आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो ये एक सेंसर है जी टोपो 30 डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इसकी स्पेशियल रेजोल्यूशन है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का मतलब क्या है कि 1 बाय 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, 1 बाय 1 किलोमीटर का एक जो बॉक्स है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको सारे उसकी जो सारी रेजोल्यूशन है उसको एवरेज करके तो एक रेजोल्यूशन आ जाती है। तो ये उसकी मतलब दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट एक्चुअली, कि आप 1 किलोमीटर के अंदर को माउंटेन्स भी आ सकती हैं, लेवल ग्राउंड भी आ सकती है, लेकिन सारों की जो 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 आपकी वैल्यूज हैं सबको एवरेज करेंगे तो वो एक पिक्सल 1 बाय 1 किलोमीटर का बन जाता है। तो एनी हाउ, जब आप इस सेंसर से जिसकी रेजोल्यूशन 1 बाय 1 किलोमीटर है वो आप एक पर्टिकुलर आल्टीट्यूड से देखेंगे तो आपको ये एरिया इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, लेकिन इसी को आप देखेंगे 90 मीटर रेजोल्यूशन के ऊपर। अब 90 मीटर रेजोल्यूशन तो 1 किलोमीटर से बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें ज़्यादा इमेज क्लियर आ गया है। ठीक है, ये इमेज जो है वो ज़्यादा क्लियर है, स्केल वही है कि उसको उतनी उतनी ही 25 किलोमीटर से आप देख रहे हैं सेम स्केल के ऊपर। तो उसके बाद अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी देख लें कि वही यहाँ पे भी स्केल वही है, और यहाँ पे आपका जो सेंसर है उसकी रेजोल्यूशन है 15 मीटर। तो कहाँ आपके पास 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एक ग्रिड है या एक सेल साइज है, कहाँ आपके पास 90 बाय 90 मीटर का, और कहाँ 15 बाय 15 मीटर। तो यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली द बेस्ट इमेज एज कंपेयर टू दीज टू वन। जो आपके पास ये और ये है, इससे जो मतलब ये जो इमेजेस हैं इससे ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। तो जो डाटा आप एक्वायर करते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू, वो डिपेंड करता है कि उसमें उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है। और इसमें रेजोल्यूशन जो होती है ना, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपका डाटा किस किस पर्पस के लिए जो है वो एक्वायर किया जा रहा है। लेट्स सपोज अगर आपने एलिवेशन का डाटा एक्वायर करना है तो डेफिनेटली आप 15 मीटर से नीचे भी जाएंगे। आप यही चाहेंगे कि आपका सेंटीमीटर्स के अंदर ग्रिड साइज बने, ताकि बहुत ही एक्यूरेट आपके पास डाटा आए अर्थ का किसी पर्टिकुलर एरिया का, जहाँ पे माउंटेन्स जो है वो माउंटेन्स हैं और वैलीज हैं, ताकि आप जो है वो ओवरऑल टोपोग्राफी को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें, आपके कंटूर्स बड़े रिफाइंड बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर का डाटा लेना, लेट्स सपोज पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर का डाटा लेना है आपने डिफरेंट पॉइंट्स का, तो सैटेलाइट्स के थ्रू आपने कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग तो करनी है। ठीक है, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें आपको ये नहीं चाहिए कि आप 1 सेंटीमीटर तक जो है ना वो जो अर्थ का जो एक एक इंच है या 1 सेंटीमीटर के ऊपर भी आप टेम्परेचर की रीडिंग्स लें। अगर आपने ग्लोबल मैप बनाना तो उसमें तो आपको 1 बाय 1 किलोमीटर के ऊपर भी टेम्परेचर की एक रीडिंग जो है वो वर्क करेगी। जैसे लाहौर है तो लाहौर में आप जो है वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के ग्रिड के ऊपर अगर आप एक टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं तो आप देखेंगे ये हंड्रेड्स ऑफ रीडिंग्स हो जाएंगी पूरे लाहौर को जो रिक्वायर करेंगे। तो इस तरह से आप फिर लाहौर का एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि जो ग्लोबल, अगर आप ग्लोबल टर्म्स में भी बात करते हैं तो उसमें भी जो 1 किलोमीटर की रेजोल्यूशन पे अगर आप टेम्परेचर की एक रीडिंग लेते हैं तो इट मीन्स दैट इज सफिशिएंट, उसके लिए वो रेजोल्यूशन ठीक है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप एलिवेशन की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर वाला जो डेटा है जहाँ पे 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन है, दिस इज वेरी पुअर। तो क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर आप देखेंगे कि कितनी वेरिएशन आ सकती हैं, कई माउंटेन्स आ सकती हैं छोटी छोटी, और उसमें फ्लैट एरिया भी आ सकता है। अगर फ्लैट एरिया की जो एलिवेशन है वो 500 मीटर है, और उसी के अंदर अगर आप लेट सपोज के एक पीक आ जाती है, उसकी एलिवेशन है 4000 मीटर, तो जब आप इसका एवरेज लेंगे तो वो तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई कि हमारे पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल जितनी अच्छी रेजोल्यूशन का होगा उतना अच्छा हमारा जो डाटा है उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे तो हमें मतलब इतने छोटे लेवल पे जाके टेम्परेचर की वैल्यूज नहीं चाहिए होती, क्योंकि अगर आप ग्लोबली कंपेयर कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन जो है वो भी, उसका जो डाटा है वो भी जो है वो चलेगा। राइट, दिस इज द डिजिटल एलिवेशन मॉडल ऑफ अपर इंडस रिवर। और ये जो मॉडल है दैट इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, और एक रिसर्च पेपर में ये पब्लिश भी हुआ है जिसमें हमने लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग जो थी पूरे इंडस रिवर की वो की थी।
तो जो उसका वाटर शेड है, तो इसमें ये एस्टर बेस जो है, इसमें जो डाटा की एलिवेशन है वो है 30 बाय 30 मीटर। ठीक है, 30 बाय 30 मीटर इसकी रेजोल्यूशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट आपके पास एलिवेशन जो है वो 8059 है। वो मेरे ख्याल में K2 के आसपास, जो K2 वाला जो एरिया है इस तरफ जो है वो होगी। ठीक है। और बल्कि K2 जो है, सॉरी, इस तरफ K2 होगा। तो ये आपका जो एरिया है ये आगे जो है वो कश्मीर की तरफ चले जाता है। ठीक है। तो ये एलिवेशन का जो मैप है ये नॉर्दर्न एरियाज के लिए है, अपर इंडस रिवर वाटरशेड। इस तरह से जो है आपके पास अगर ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन का डाटा अवेलेबल है तो आप उससे भी इस तरह के मैप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और ये जो मैप्स हैं, एलिवेशन मैप्स, ये डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती हैं। इसमें आप उस पर्टिकुलर एरिया का वाटरशेड एरिया निकाल सकते हैं, आप ड्रेनेज पैटर्न निकाल सकते हैं, आप स्लोप्स के एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको हाइड्रोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के एरिया को आप क्रॉस सेक्शंस ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर। आप इसमें डिफरेंट अदर काइंड ऑफ जो मेजरमेंट जो एलिवेशन से रिलेटेड है वो आप ले सकते हैं डिजिटल एलिवेशन की मॉडल की मदद से। ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट एपिसोड इज के जो जीपीएस क्या चीज़ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है। तो ये आई गेस नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका इसी वीक का, उसके अंदर हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डाटा इन जीआईएस इन्वायरमेंट, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।